गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 26। अनुवाद रमा मिश्र माता जी। देखें। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवि ब्रह्मयज्ञो ब्रह्मणाहृतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवि ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणाहृतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अनुवाद। प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म ब्रह्म अर्पण ब्रह्मवेद ब्रह्म अग्नि ब्रह्मणाहुत ब्रह्म एव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म सम अकर्मणा। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिक। अर्पण माने अर्पण अर्थ अर्प्यते अनेक इति अर्पण सुबादि आ ब्रह्म अभि अर्प्यमाण एवं घृतादिकं ब्रह्मणा कर्म कर्ता ब्रह्माग्नो ब्रह्म एव अग्नि हुत होमं बहु अग्नि न कर्ता न क्रिया न ब्रह्म च ब्रह्म एवं इति अर्थ। तेन कर्म ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मणि एव कर्मात्मने समाध्यै तते एकाग्रं यस्य तेन बहु एव गन्तव्यं प्राप्यं न तु फलान्तरम् इति अर्थ। अनुवाद होची श्रुवादि यज्ञपात्र घृतादि द्रव्य यज्ञकर्ता ବା ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ହୋମ କର୍ମ ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ଚଳ ଭକ୍ତି କର୍ମାତ୍ମକ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମରେ ଏକାଗ୍ର ରହେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ଫଳ ରୂପେ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ। ଏହା ହଉଛି କ'ଣ ଭୌତିକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବଦ୍ଧଜୀବ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ହିଁ କର୍ମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଓ କ୍ରିୟା ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାବୃତ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ ସ୍ତରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ, ଏବଂ ତାହା ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଣ ବୋଇଲେ ଦିବ୍ୟ ଭାବକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ। ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଭୌତିକ ଆବରଣ ଈଶ୍ୱର ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ, ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ଚେତନାରେ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଯାହା ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ତାହା ଅର୍ପିତ ହୁଏ, ଅର୍ପଣ ବିଧି ଯେ ଅର୍ପଣ କରେ ଏବଂ ଯତ୍ ଲବ୍ଧ ଫଳଂ, ସେହି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବା ପରମ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଯଜ୍ଞର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଧାରଣାର ଚକ୍ର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଯେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି, ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସେ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ବା ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ଯଜ୍ଞର ସକଳ କର୍ମ ଆହୁତି ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବମୟ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେହି ଯଜ୍ଞକୁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ ସମ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅଧିକରଣ ସର୍ବତ୍ର କର୍ମରେ ବହୁବିଧି ରୂପ ସମାଧି ହେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାତା ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସକ୍ତିର ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଏହା ନିଷ୍କାମ ବୃତ୍ତିରେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗର ଶେଷ କଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ବିରାଜିତ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାତା ଜ୍ଞେୟ ଏବଂ ଉପାସ୍ୟ ଉପାସକ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ରହେ ନାହିଁ, ସର୍ବତ୍ର ଏକତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଜାତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଣାମ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ରମା ମିଶ୍ର ମାତାଜୀ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ହବିର୍ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନୋ ବ୍ରହ୍ମଣା ହୃତମ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ତେନ ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ସମାଧିନା। ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଛଅ ଥର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଥମେ ତ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ମାନେ ଅର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶୁଭା ଆଦି ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ହବିର୍ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେଉଁ ଘୃତ ଆଦି ଘିଅ ଆଦି ମାନେ ଯଜ୍ଞ ସାମଗ୍ରୀ କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ଅଗ୍ନୌ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଅଗ୍ନି ଅଟନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଣା ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ହୋତା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ହୃତ ଆହୁତି ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ତେନ ବ୍ରହ୍ମ କର୍ମ ସମାଧିନ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ କର୍ମରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଗନ୍ତବ୍ୟମ୍ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯାଏ। ମାନେ ଏଠି ସବୁକିଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଗତକାଲି ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ କି ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଗତକାଲି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ ଯେ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତ ଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ସେ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ତା ପରକୁ ତା ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କିଭଳି ଭାବେ କରିବା ଉଚିତ, ସେ କର୍ମକୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଜ୍ଞର ଜୁହୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ହବିର୍ ଯେଉଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ହବନକର୍ତ୍ତା ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବିବେକବାନ ପୁରୁଷ ଯିଏ ମାନେ ଏସବୁ କରିଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମକ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସମାଧି ଯେଉଁ ଚିତ୍ତରେ ଏକାଗ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ଫଳ ନ ଦେଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ଫଳ ରୂପରେ ଦେଇଦିଏ। ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞର ସ୍ୱରୂପକୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ପାଦଙ୍କ ମତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତ ଦେବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆରାଧନା ଲକ୍ଷଣମ୍ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ହେତୁତ୍ୱେ ନ ବନ୍ଧକତ୍ୱା ଭଗଦାକମ୍ ଏବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କର୍ମ ଜ୍ଞାନ କା ହେତୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବନ୍ଧନ ଆମକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ
प्रत्येक दिन करती सी आमको बांधे ना एवं से मध्य माने कर्म द्वारा आम भगवान को प्राप्ति होता तार कारण आहरी आग को से कहते कि परमेश्वर आराधना ज्ञानर कारण हो से आमको कर्म रूपी बंधन न दे से अकर्म को प्रदान करिथा एठी माने परमेश्वर आराधना द्वारा कभी केबे हेले बंधन हुए ना एक कथा स्वामी मत किंतु श्लोक रे जो श्री भगवान यज्ञ कर्म को व्याख्या करिसंती सेटा को बुझिबा को हबो माने से कहउचंती ब्रह्मार्पणम श्लोक को देखिबा ब्रह्मार्पणम मतलब तार अर्थ हैला अर्पण जो अर्पण आमे करिबा से ब्रह्म पुणी से कहउचंती ब्रह्म हबि हबि हैला ब्रह्म हबि हैला जो माने हवन र जो द्रव्य आदि तापरे कहउचंती ब्रह्मा अग्नौ माने ब्रह्म रूप अग्नि निजे हेले ब्रह्म रूप तापरे ब्रह्मणा होतम माने ब्रह्म रूप रे ही कर्ता आउ तापरे कहउचंती ब्रह्मैवते निगंतव्यम ब्रह्म जो हवन जो यज्ञ आदि करा जाए से मध्य जहाँ द्वारा कराए से मध्य ब्रह्म से ब्रह्म ही अटंती ए प्रकार जे कर्म करि थाए ब्रह्म दृष्टि रे से मध्य ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाए एठी देवता उद्देश्य रे यदि आमे कौनसी द्रव्य को त्याग करते ताको याग कहा जाए से ही द्रव्य को अगर जदि आमे अग्नि रे छाड़ी दियंते ताको होम कहा जाए यदि आपण वर्ष सारा जमीती पुरी रे आपण जीवे जदि कल्प वृक्ष रे कौनसी मानसिक करिकी गोटे रस्सी बांधिबे सेठी जो ब्राह्मण रहती से कहती तमे गोटे जिनस तुम जोटा प्रिय जिनस गोटे वर्ष पर छाड़ी दियो ता द्वारा कौन हम ना सेटा याग हो माने गोटे उद्देश्य रे जिते आमे गोटे वस्तु को छाड़ी दियंती ताको याग कहा जाए जिते बड़े आमे सही वस्तु को अग्नि अर्पण कर दियंती ताको होम कहा जाए यज्ञ रे अनेक प्रकार कारक रही आमे मध्य कारक सु शब्द से शब्द क्रिया सहित जे संबंध करिथा ताको कारक कहा जाए एवं यही कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान संबंध अधिकरण इस प्रकार कारक द्वारा ही आमे ताको माने क्रिया सहित संबंध को बुझंती कि एक्चुअली आमे कौन करूचंती कर्ता जी माने निजे कौन से कर्म करे ताको कर्ता कारक कहा जाए एवं एठी श्री भगवान ए जगार जो ब्रह्मणा शब्द व्यवहार करिसंती से ही कर्ता माने श्री भगवान कहउचंती ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा जे ए प्रकारर निजे निजे माने निश्चित करिनिए कि मु ही माने श्री भगवान को एभली कर्म निष्काम कर्म करी ए जगत रो भगवान का निर्देश क्रम निष्काम कर्म करी से निजे ही ब्रह्म रूप हो जाई थाए कर्ता माने एठी ब्रह्म होई कारण श्रुति कहे न देव देवम अर्चयेत न देव देवम अर्चयेत यार अर्थ हैला ब्रह्म न होई ब्रह्म को ध्यान करी हब नाही निजे देवता न होई देवता को पूजा करी हब नाही तेणु श्री भगवान ए जगार जो ब्रह्मणा शब्द कहते तार अर्थ है जी श्री कृष्ण को बा श्री जगन्नाथ को पूजा करने भक्ति करने मनरे पूरा दृढ़ निश्चय कर नहीं थाए से मध्य तांको अभिन्न बोली बुझा को हब एठी कर्ता ब्रह्मणा कर्म ब्रह्म कर्म समाधिना श्री भगवान कहते एठी ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम
ब्रह्मैव ते न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म जो अंतिम शब्द भगवान कहते से वास्तव में कर्म कारक को भगवान बुझाई श्री अर्जुन देव को। ब्रह्म कर्म समाधिना जी ब्रह्म कर्म करने दृढ़ निश्चित हो सारी से वास्तव में सी कर्म ही ब्रह्म अटे। किभली जदि श्री भगवान नाम संकीर्तन भगवान लीला कीर्तन जदि किहे व्यक्ति करुछंती ताकू जदि आमे गोटे काम कहवा से कौन करुछंती ना से सब बेले भागवत पढ़ुछंती बा से सब बेले हरिनाम संकीर्तन बसिकी करुछंती वास्तव में तार कर्म ही ब्रह्म अटे। तेणु ये जगह श्री भगवान कहते ब्रह्म कर्म समाधिना। तापर करण करण है माध्यम रे ब्रह्मार्पणम हबि जो अर्पण करा जाए सी मध्य ब्रह्म स्वयं अटे। जहा द्वारा तुम्हें काम करुछ सी मध्य स्वयं ब्रह्म अटे। ताकू आमे बुझी पारिबा श्रवण भक्ति द्वारा। यदि माने आमे भगवान को नाम लीला कीर्तन श्रवण करिबा जो श्रवण करुचंती कान द्वारा जो द्वारा शब्द आसी थाए ताकू करण कारक कहा जाए। इस श्लोक रे श्री भगवान जो कहिसंती प्रथम शब्द ब्रह्मार्पणम जो अर्पण करुछ से हला ब्रह्म। जो आमे भगवान को बारे में जितेबाला आमे श्रवण करती से श्रवणर जो शब्द से निजे ब्रह्म ही हटंती। तेणु से ब्रह्म आम हृदय प्रवेश करी जाती। तापरे संप्रदान कारक जहाँ पाई आमे करती से निजे हेले ब्रह्म। एठी माने श्री भगवान ए जगार जो कहते से ही ब्रह्म अटे ब्रह्मैव ते माने ए जगार ब्रह्म शब्द द्वारा श्री भगवान ये कहते तुम जहाँ पाई करुछ से मध्य ब्रह्म कारण तत्वमसि तुम्हें ही ब्रह्म अट तत्व त्वम असि तुम्हें सी अट सी कौन सी किए सी हेले स्वयं ब्रह्म। अपादान कारक अलगा हो जावा एठी श्री भगवान जो कहिसंती ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हृतम हृतम शब्द द्वारा से अलग हवा पाई कहिसंती माने जोटा को आमे हाथरू छाड़ी दियंती अग्नि रे सेला हृतम से चली जाए आम ठारू। एठी श्री भगवान जो अपादान कारक को बुझाई कर्म माध्यम रे आमे कौन छाड़िबा उचित ना माया को आमे त्याग करदेवा उचित सेटा को अर्पण रे करदेवा भगवान को पाखरे छाड़ीदेवा उचित एवं आमे से अग्नि रे ताको छाड़ीदेवा उचित। जोटा आमको आमे छाड़िबा कोटा आम ठारू अलगा किए हब ना हृतम आमर जेते प्रकार कामना वासना ताको आमे से जगार यज्ञ रे छाड़ीदेवा उचित। एवं तापर संबंध कारक संबंध कौन ना श्री भगवान कहते ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हृतम ब्रह्मैव ते निगंतव्यम ब्रह्मेण ते निगंतव्यम ये हमार संबंध अटे। अर्थात आमे कहा को प्राप्त करिबा कौन पाई आमे कर्म करिबा आमर संबंध कौन संबंध हैला भक्ति रागानुगा भक्ति संबंध भक्ति नुह संबंध भक्ति तो आमे आरंभ कर दियंते जाय कि बाजार आज आमर मन हैला मार्केट जीवा कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया गोटे माला दे दियो आउ आमको गोटे झोला दे दियो आउ आम पाई गोटे आसन ऑर्डर दे दियो बा ये सब आनिला परे आउ घरे बसिक तापर दिन आम आरंभ कर दियंती। ये सब जो कार्य एको कहा जाए बहिदी भक्ति एको भक्ति रे गणा जाए नहीं। जे पर्यंत आमको निज हृदय रे भगवान के प्रति प्रेम जागृत है ना इच्छा आसी ना से गुड़िक आज आम कर काली पुणी बंद करदेवा आम। तेणु ये जो संबंध कारक श्री भगवान कहते ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ये रागानुगा भक्ति अधिकरण माने कौटी आम एक माने किभली भाव को करिबा ना भगवान कहते ए श्लोक रे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ
ये अग्नि रे ही आमे कौन करवा उचित अर्पण करवा उचित। यही अग्नि ही माने हेला अधिकरण ता द्वारा ही माने यज्ञ करा जीवो। ये अग्नि क्या कौन ना मदाश्रय मो ठारे ही तुम आश्रय नहीं जाओ माने मो ठारे तुम यदि आश्रय नहीं जीव ताहले तुमर ये अधिकरण कारक मध्य पूर्ण हो जीव। तो ये जगार भगवान सातटी कारक को ये जगार बुझाई क्रिया सह संबंध को माने कर्ता द्वारा कर्म द्वारा करण द्वारा एवं संप्रदान द्वारा अपादान द्वारा जो अलगा करदेवा संबंध कारक द्वारा एवं अधिकरण कारक द्वारा श्री भगवान श्लोक को माने सातटी संबंध को श्लोक वर्णन करिसेंती। आमे जहा करूछंते कर्म ये कर्म योगर श्लोक ये ब्रह्मार्पणम ब्रह्मार्हवि ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहृतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। एठी तेणु श्रीधर स्वामीपाद श्लोक कही कि माने परमेश्वर आराधना जदि आमे रूप कर्म करती ताले से ज्ञान प्रदान करुथबारु से हमको कर्म बंधन दिए नाही। एठी जो ब्रह्मैव गंतव्यम ब्रह्म कर्म सह संबंध रही ब्रह्म द्वारा ही आमर व्यवधान रहे नाही ब्रह्मठु आमे अलगा रहंती नाही। तेणु तार फल स्वर्ग आदि न होई ता फल स्वयं ब्रह्म ही जानती। कारण जितेबले आमे ब्रह्म कर्म करती सेतेबले आमे पुणी ब्रह्म ठारू भिन्न हो पारती नाही। तेणु एठी जो ब्रह्मात्मकम यत् कर्म तत्रैव समाधि एठी जो ब्रह्म कर्म ब्रह्मात्मक होइथिबारु से चित्तरे एकाग्रता आमको देई थाए। रामानुजाचार्यपाद श्लोक माने कहते कि जो तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म एव गंतव्यम से कहते एभली भाव जो ब्रह्म कर्म समाधि एवं पुरुष द्वारा प्राप्त वस्तु को जो प्राप्त हुई से मध्य स्वयं ब्रह्म ही होता है। कारण ब्रह्म कर्म निजे समाधि हो जाए एवं तार जो फल मिले सी मध्य स्वयं ब्रह्म ही अटंती। तार कारण है माने निजे जे ब्रह्म को बुझी थाए से मध्य तार प्राप्त वस्तु मध्य ब्रह्म ठारू अभिन्न होता है। तेणु यह भाव ब्रह्म कर्म रूप से श्लोक को श्री भगवान माने बुझाई। जय जगन्नाथ हरि बोल।